Dear student, today we will start with IC voltage regulators. IC voltage regulators. Okay, so IC voltage regulator, it is a particular device which is used to provide constant power supply. In many of electronic applications, we require constant power supply, such as IC or any of the devices which require a constant power supply. So due to of this, we can use regulators. So first thing is that we consider this is the IC. Okay, so you know that for operating of that type of IC we require constant power supply. Okay, so this constant power supply we will get from uh, voltage regulator. Okay, electronics having a small devices, very small and quiet devices, we require 3 volt, 4 volt, 5 volt, 7 volt, 8 volt, and all this. Okay, so these types of voltage can be provided by using the constant power supply. Okay, so this is called as a voltage regulators. Okay, so voltage regulator are generally categorized in positive voltage and negative voltage. If you want positive voltage, in that case you use 78xx. Okay, so 78xx is for positive voltage and 79xx is for negative voltage. This is for positive voltage, this is for negative voltage. Okay, so what is mean by xx? This is for positive, this is for negative. Okay, so if you want constant 4 volt, then we use. If you want constant positive 4 volt, then we use 7804. If you want constant negative 5 volt, okay, negative 4 volt, then we use 7904. If you want positive 5 volt, we will use 7805. If you want negative 5 volt, we will 7905. Okay, this is for positive volt, this is for negative volt. So up to, if you want 12 volt positive, then you use positive 12 volt, then we will use 7812. This is for positive 12 volt. If you want negative 12 volt, then you use 7912. So this is broad categorize the IC structure, what kind of we will use for delivering the constant voltages, in many of the electronic application, such as IC or any of the equipment that require constant power supply, in that case only voltage regulators are used. Okay, some of the person or many of the person use this voltage regulator for DC applications. Okay, so we will categorize these types of voltages by using the rectifier. Okay, so we will start with rectifier. Rectifier is a device which convert AC to DC. ओके, आपको डीसी वोल्टेज चाहिए मीन्स वो डीसी वोल्टेज कहाँ किधर से मिलेगा, किधर एसी से मिलेगा, तो एसी में से अपने को उसको डीसी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये जो काम है, ये जो पर्टिकुलर वर्क है, ये कौन परफॉर्म करता है, आईसी रेगुलेटर्स परफॉर्म करता है. ओके, अभी इस आईसी रेगुलेटर के अंदर रेक्टिफायर आता है. रेक्टिफायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें रेक्टिफायर होती है. ओके, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ. अब देखो, आपको चाहिए 12 वोल्ट चाहिए. सब कंसीडर इफ यू वांट 12 वोल्ट पॉजिटिव, देन वी विल व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और व्हाट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर और व्हाट काइंड ऑफ द इक्विपमेंट विल बी यूज फॉर कन्वर्शन ऑफ these types of AC voltage into DC voltage. So in that purpose we generally use some
some devices, and these devices is called as, transformer. Okay, so this is the structure of ट्रांसफार्मर. ओके, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी आप एसी वोल्टेज देते हो, इसको जो एसी वोल्टेज मिलता है, आपके घर में जो एसी वोल्टेज आता है कितना आता है, 230 वोल्ट. ओके, तो ये 230 वोल्ट को आपको डाउन करना है, मतलब सपोज इसको कन्वर्ट करना है 9 वोल्ट में या 10 वोल्ट में. लेकिन कौन सा एसी वोल्टेज बोल रहा हूँ, मैं एसी की बात कर रहा हूँ, ये डीसी हो गया, मैं एसी की बात कर रहा हूँ. तो एसी को जब अपन डाउन करना है तो अपन यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर. क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर. इसमें आता है एक एल मतलब न्यूट्रल, एक आता फेज आता है या लाइन आता है, लाइन भी कहते हैं, एक आता है न्यूट्रल. ओके, सो इसको बोलते हैं वन फेज एसी. क्या बोलते हैं, वन फेज एसी. ये आपको समझ में आ गया. तो इसके बाद यूज़ होता है रेक्टिफायर सर्किट. इसके बाद यूज़ होता है रेक्टिफायर सर्किट. अब रेक्टिफायर सर्किट क्या रहता है, रेक्टिफायर सर्किट बेसिकली इसमें डायोड यूज होते हैं. क्या यूज होते हैं, डायोड. एक रहता है एनोड, एक रहता है कैथोड. ए डायोड इट इज अ डिवाइस विच एबल टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, विच एबल टू कन्वर्ट. जो एसी वोल्टेज आता है, देखो फर्स्ट थिंग याद रखो, एसी वोल्टेज में कितना, एसी वोल्टेज जो रहता है आपका, तो ये एसी वोल्टेज में क्या रहता है, जनरली 230 वोल्ट रहता है. क्या रहता है, 230 वोल्ट. और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज. वो कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज. तो ड्यू टू ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको शॉक लगता है. शॉक क्यों लगता है, बिकॉज वोल्टेज भी ज़्यादा है और इसमें फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है. वोल्टेज भी ज़्यादा है और इसमें फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है. इसके कारण आप जब भी घर में काम करते हो या घर के जो वोल्टेज कूलर होगा या कोई भी आप चीज़ रहती है घर में, वो उसको आप टच करते हो तो आपको कभी कभी शॉक लगता है. तो शॉक क्यों लगता है, बिकॉज एसी में क्या रहता है, वोल्टेज भी ज़्यादा रहता है और फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट रहती है. इसके कारण आपको शॉक लगता है. लेकिन डीसी ऐसा नहीं है. डीसी में क्या रहता है, डीसी में वोल्टेज रहता है 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट तक वोल्टेज रहता है और इसमें फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं रहती. इसलिए आपको डीसी का कभी भी शॉक लगता नहीं है. जो लो वोल्टेज डीसी है उसका कभी भी आपको शॉक लगता है. आपने कभी देखा है क्या, किसी को मोबाइल का शॉक लग गया या किसी को बैटरी का शॉक लग गया, क्यों लगता नहीं है, बिकॉज ऑफ डीसी का कभी भी शॉक लगता है क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं होती है. तो ये जो पर्टिकुलर वर्क है, ये डायोड परफॉर्म करता है. कौन परफॉर्म करता है, डायोड परफॉर्म करता है. ओके, सो रेक्टिफायर में क्या रहता है, अपन 2 डायोड यूज करते हैं. इसके रेक्टिफायर में 2 टाइप आता है, एक आता है हाफ वेव, एक आता है फुल वेव. आप ये भी ध्यान में रखो कि हाफ वेव में 2 डायोड यूज होते हैं, फुल वेव में 4 डायोड यूज होते हैं. तो इसका कनेक्शन बन के, इसका डायोड का कनेक्शन मिला के रेक्टिफायर बनता है. समझ गया. ओके, सो देन वी विल यूज फिल्टर. और आप बोलेंगे अब फिल्टर का क्या मीनिंग है. ओके, सो फिल्टर क्या रहता है कि जब अपन देखो, इधर एसी हो गया, इधर एसी था, इसके बाद डीसी हो गया, लेकिन डीसी होने के बाद इस पर्टिकुलर फिल्टर्स में, इन दिस पर्टिकुलर फिल्टर सम ऑफ द एसी कंपोनेंट अवेलेबल. समझ रहा आपको क्या बोल रहा हूं मैं. जब भी आप एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीसी वोल्टेज में कुछ एसी कंपोनेंट रह जाते हैं, तो उसको अपने को निकालना है. फॉर रिमूविंग दिस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट वी यूज फिल्टर. समझ में आ गया. जैसे आप घर में पानी को फिल्टर करते हैं, आप पानी को एक पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ करके, पर्टिकुलर जो थिंग्स यूज़ करके पानी को फिल्टर करते हो, मीन्स उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज़ रही है या कुछ भी जो डस्ट है, पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करना है. इसलिए आप क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं. वैसे ही जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये डीसी में कुछ एसी रह जाता है, तो उस एसी को रिमूव करने के लिए अपन फिल्टर यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं. और उसके बाद में आता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर. उसके बाद में क्या आता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, मीन्स आपको अभी देखो भाई, यहाँ से एसी दिया, डीसी में कन्वर्शन हो गया,
AC दिया, DC में कन्वर्शन हो गया, फिल्टर भी यूज़ किया, प्लस उसमें जो इम्प्यूरिटीज थी, मतलब जो भी AC कंपोनेंट थे DC में प्रेजेंट, वो भी रिमूव हो गए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपको वो जो DC वोल्टेज हो ये कितना चाहिए, ओके, विच वोल्टेज, विच लेवल ऑफ वोल्टेज यू वांट, ओके। सपोज यू वांट 12 वोल्ट, देन वी यूज विच 12 वोल्ट भाई, 12 वोल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। सपोज इफ यू वांट पॉजिटिव 12 वोल्ट, then you use 7812. If you want negative 12 volt, then we use 7912. Okay, so this is applicable for all these voltage range. So आपको जो भी वोल्टेज चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, पॉजिटिव 9 चाहिए, नेगेटिव 9 चाहिए, तो आईसी यहाँ पे फिट कर दो। 3 टर्मिनल की आईसी आती है, वो कितने टर्मिनल की आईसी आती है, 3 टर्मिनल की। तो जो भी आपको आईसी चाहिए वो यहाँ पे क्या कर दो, फिट कर दो। तो अभी देखो ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कितना दिख रहा है आपको, 7805 दिखा, 7805। ये भी देखो इसका तो क्या मीनिंग है, ये जो चीज़ है इसका भी देखो कितना है, 7812 दिख गया क्या। देखो 7812 लिखा है ऐसा, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। कितने टर्मिनल का है, 3 टर्मिनल का है। ओके, सो कंसेप्ट क्लियर। और फिल्टर जो है ना, ये फिल्टर का काम, ये कैपेसिटर जो है ये फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर के टाइप है, सी टाइप, एल टाइप, ऐसे अलग अलग टाइप आते हैं। तो सी टाइप भी एक फिल्टर है, तो ये फिल्टर का ये काम ये करते हैं। ओके, तो 230 वोल्टेज अपन जनरली इधर अपना देखो, ये डायोड देखो मैंने कहा था रेक्टिफायर में डायोड है, देखो दिस इज कॉल्ड एज डायोड। ओके, सो ऐसे चीज़ें आप यूज़ करके क्या करते हैं, उसके वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं। तो इसको कहते हैं, इस टॉपिक को जो कहते हैं वो कहे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। इस फिगर का नाम क्या है, फिगर है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, सो ये आपका टॉपिक हो गया। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, ओके, फिल्टर में भी थोड़ा बहुत वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ पे तो कंपोनेंट तो आएंगे। यहाँ पे जो आएगा तो है एसी वोल्टेज आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, एसी वोल्टेज आएगा। यहाँ पे देखो पूरा डीसी हो गया। देखो ये है एसी और ये है डीसी, इसको बोलते डीसी कांस्टेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर भी अपन अभी पोस्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।